हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन एंड इट्स टाइप्स. सो लेट्स स्टार्ट. हाइड्रोकार्बन is a term made up of two words. The first word is called as hydrogen and the second word is carbon. So hydrogen का लिए गया hydro and पूरा carbon. Then this hydrocarbon word is formed. So overall it is saying that hydrogen and carbon containing compound are called as hydrocarbon. So for example, CH4, C2H6, C3H8, C2H4, C2H2, C3H6. Many number of hydrocarbons are there which we may study in homologous series. So let's understand hydrocarbon and its classification. So basically hydrocarbon are of two types. On the basis of the bonds present, these are two types. First type is called as saturated hydrocarbon, and the another is called as unsaturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon means carbon and carbon must be having only single bonds. इनके बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड मिलते हैं. ठीक है. कार्बन एंड कार्बन विल नॉट बी हैविंग एनी काइंड ऑफ बॉन्ड एक्सेप्ट सिंगल. But unsaturated are those where carbon and carbon will be carrying double or carbon and carbon may carry triple. See, carbon valency we know, carbon valency is 4. So for fulfilling the valency of carbon, we need to put residual bonds with the help of hydrogen. जैसे यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड आ गया. टोटल वैलेंसी क्या है? 4. एक पूरी हो चुकी है, बची कितनी? 3. तो 3 को क्या करें हम? हाइड्रोजन से बैलेंस कर दें. सेम वे इस साइड में एक वैलेंसी आपकी कार्बन कार्बन से सैचुरेट है, बाकी 4 वैलेंसीज 4 हाइड्रोजन से. सेम यहाँ पर इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड्स हैं? 1 2. डबल बॉन्ड इज डेवलप्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन. बची कितनी वैलेंसीज? 2. तो एक ये ले लिया आपने और एक ये ऊपर वाली. तो यहाँ पर क्या लगा दिया? H. सेम वे यहाँ पर भी H लगा दिया. इसको देखेंगे तो 3 वैलेंसीज ट्रिपल बॉन्ड से सैचुरेट है, एक बची H की, तो वो H से सैचुरेट हो गई. सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोस कार्बन वेयर कार्बन एंड कार्बन इज हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड. Single bond is a speciality of this. But in this double or triple, both bonds can be present between carbon and carbon only. Okay. So saturated hydrocarbon are having general formula CnH2n plus 2, and unsaturated carbon are of two types: double bond base, triple bond base. So if you talk about double bond, they are having CnH2n and triple bond which is having CnH2n minus 2. So ये हमने तीनों का जनरल फार्मूला लिख लिया. ये क्या है? जनरल फार्मूला. जनरल फार्मूला CnH2n plus 2, जनरल फार्मूला CnH2n minus 2. ये किसका था? सिंगल बॉन्ड का था. ये डबल बॉन्ड कंपाउंड्स का था और ये ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड. सो दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज एल्केन. इसमें रिमेंबर लास्ट में एन आता है, एन को फोकस करना है. एल्केन एंड इट इज कॉल्ड एज एल्कीन. इसमें इन को फोकस करना है. इसमें इट इज कॉल्ड एज एल्काइन. इन दिस वी नीड टू फोकस ओवर आइन because these are the identification, means the suffix of single bonds. Single bond suffix is ane, double bond suffix is ene, triple bond suffix is ine. Okay. So let's prepare the formula for each. Just consider n equals to 1. So in this there will be no member, but in this there will be member. Just keep the formula, keep the value of n into the formula.
n equals to 1 means carbon will be 1, then 1 2 जा 2, 2 plus 2 4, तो क्या हो गया CH4, ये हो गया आपका फर्स्ट मेंबर। जस्ट टेक अनदर एग्जांपल, n equals to 2, so after keeping n equals to 2, n की वैल्यू 2, तो कार्बन कितना हो गया 2 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 2 2 जा 4, 4 plus 2 6, ये हो गया आपका C2H6। सेकेंड मेंबर इज एग्जिस्टिंग इन दिस, तो कार्बन 2, हाइड्रोजन 2 का 4, 2 का डबल 2 into 2 means 4, so it is C2H4। अब यहाँ करते हैं, n equals to 2 लगाने पर क्या फॉर्मूला बनेगा, C2 2 2 जा 4 minus 2, 4 में से माइनस गया 2, तो क्या बचा 2, so the formula is C2H2। now we are taking another example, n equals to 3, if n equals to 3 तो वैल्यू रखते हैं, C क्या हो जाएगा 3, H की वैल्यू 3 2 जा 6, 6 plus 2 8, इसमें क्या हो जाएगा C3 3 2 जा 6, एंड इसमें क्या हो जाएगा C3, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो C3H4। अब इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक। स्ट्रक्चर में फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें, CH4 की बात करें हम, तो इट इज दिस स्ट्रक्चर, ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल। C2H6 की बात करें हम, ये जितनी वैकेंट वैलेंसीज है यहाँ पर हम एस लगाएंगे, ये C2H6 हो गया। अब C2H6 को हम अगर C3H8 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फॉर्मूला C3H8 चेंज किया और इधर हमने एक कार्बन और अटैच कर दिया, तो ये बन गया C3H8। नाउ अगर हम C2H4 की बात करें तो कार्बन कार्बन इज हैविंग वन डबल बॉन्ड, बची दो वैलेंसीज, तो आपने इनको किससे सैचुरेट कर दिया H से। C3H6 में एक कार्बन और बढ़ा देते हैं हम, so this is C3H6। C2H2 की बात करें, ट्रिपल बॉन्ड will be there, so it is C2H2। C3H4 में एक ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन वैलेंसी क्या है 4, इस सेंट्रल कार्बन की देखिए 3 + 1 4, 3 + 1 4, यहाँ पर इस कार्बन की 1 2 3 4, तो ऐसे ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया। IUPAC नेमिंग की बात करें अगर हम, तो इसके लिए रूट वर्ड, जब कार्बन एक होता है तो रूट वर्ड होता है मेथ, कार्बन 2 के लिए एथ, कार्बन 3 के लिए प्रो, ओके। अब अगर आप इसमें जा रहे हैं तो इसका रूट सफिक्स लगा दीजिए, इसमें जा रहे हैं सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दीजिए, डबल बॉन्ड है तो ईन लगा दीजिए, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगा दीजिए इसी नाम के आगे, तो इसका नाम एन लगाया क्या बन गया मीथेन, 2 कार्बन में एन लगाया तो इथेन, 3 कार्बन में एन लगाया तो प्रोपेन, सेम वे 2 कार्बन में ईन लगाया तो 2 कार्बन रूट वर्ड क्या है एथ, और ईन लगा दिया क्या बन गया एथीन, 3 कार्बन का रूट वर्ड है प्रोप और उसमें ईन जोड़ दिया तो क्या बन गया प्रोपीन, सेम वे 2 कार्बन का रूट वर्ड क्या है एथ, सफिक्स क्या है ट्रिपल बॉन्ड का आइन, तो क्या बन गया एथाइन, 3 कार्बन में रूट वर्ड है प्रोप और सफिक्स जोड़ा तो क्या बन गया आइन। सो इस तरीके से इनकी नेमिंग हो गई। इसी सीरीज को बेटा होमोलोगस सीरीज भी बोलते हैं। सो दैट वी विल बी एक्सप्लेनिंग मोर इन द नेक्स्ट वीडियो।